Hello, children. Welcome once again to English video. How are you all? In the last video, we discussed about writing skills, about objectives of David Copper goes to school. Very nice story. How he went to school, how he became scholar, and due to that his aunt Miss Trotwood and all that. And we also discussed about who said to whom. We discussed about choose the correct answer from the option given, and then about writing skill also we discussed, and about test your grammar skill. I also told you that if you are in need of correct the degrees of the adjectives, more knowledge, I have already sent the video, but if you want again we can still send you the video, but please post on the on my personal app that if we are in need of the video. Okay, now we will be moving with fun with vocabulary. This time tick mark the correct spelling. Fun with vocabulary, in that tick mark the correct spelling is there. So children, you must be knowing this very well. So now we will start with, in the first spelling, autumn, autumn and tom. So middle one, autumn is the right spelling, children. Awful, aweful, aweful, ful. So aweful is the right spelling. Awful. Almost, almost, almost. ALLMOST, ALMOST, ALMUST. ALMOST, almost is the right spelling. ALL will not come. Almost it will be. So almost, ALMOST. Okay, next. All together. All together. ALTOGTHER. ALTOGETHER. ALLGTOGETHER. So in that middle one, ALTOGETHER is the right spelling, because it is all together. Together spelling is TOGETHER, and ALL will not come, A single L will come. So it is all together, middle one is correct. Now aeroplane. Aeroplane, 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 AROPLAN, aeroplan, AROPLANE, aeroplane. So aeroplane, AEROPLANE is the right first one. In E, first one is the right spelling. Second is butcher, butcher, butcher. Butcher, BUCHER, BUTCHER, BOOTCHER. BUTCHER, middle one is the right spelling. Now commissioner, COMISIONER, COMISSIONER, COMMISSIONER. Middle one is the right spelling, commissioner. Next is dialogue. DIALOG, DLOGUE, DIALOGUE. Last one, DIALOGUE is the right spelling. Independence, INDEPENDENCE, INDIPENDANCE, INDIPINDENCE. I, in I, first one, INDEPENDENCE is the right. Most of you might have guessed it, because you all know, you are very good children, you all know the spelling of independence, but you have to pay attention to the spellings always. Next is neighbor, NEIGBOR, NEIGHBOUR, NEGHBOR, NEIGHBOUR, neighbor is the right answer. Restaurant, RESTORANT, RESROURENT, RESTAURANT, 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 restaurant. Last one is the right spelling. Now traveler, TRAVELER, TRAVELLER,
Traveller. Traveller. Traveler is the right spelling. Now, next is on the same page, page number 125. Same, there are antonyms, I think so. No, this is not the page. In this page only, back lower side, क्वेश्चन नंबर 2, फन विथ वोकेबलरी डी में क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, टेक्स्ट बुक होंगी आपके पास. सो देर आर सम वर्ड्स गिवन, यू हैव टू फाइंड द अपोजिट्स ऑफ देम. सो आई विल रीड आउट द वर्ड्स फर्स्ट. रूरल, मॉडर्न, टेम्पररी, स्टेल, कवर्ड, haughty, fertile, strict, unfortunate, and proud. For among this, from this, you have to choose the opposite for the following words. Antonyms means opposites. Synonyms means meaning. Okay, same word. So, antonyms का मतलब होता है opposite. Barren. Barren का मतलब होता है बंजर. Barren का मतलब होता है बंजर. तो बंजर का अपोजिट होगा फर्टाइल. फर्टाइल म्हणजे बहुत ज़्यादा उपज शक्ति वाली ज़मीन. बैरन म्हणजे कुछ भी नहीं उगने वाली बंजर ज़मीन. आया ध्यान में? बैरन अपोजिट फर्टाइल. सेकंड इज हम्बल. हम्बल म्हणजे बहुत ही अच्छे से नरम स्वभाव वाला, एकदम बिना घमंड वाला बोलते हैं अपन जिसको, उसको हम्बल बोलते हैं. तो हम्बल का अपोजिट प्राउड, जिसको बहुत ज़्यादा घमंड रहता है. ओके. ब्रेव, निडर, बिल्कुल किसी से डरता नहीं है और सच्चाई का सामना करता है. अपोजिट होगा कॉवर्ड. कॉवर्ड का मतलब होता है बुज़दिल, जो डरता है. लीनियंट, LENIENT का स्पेल होता है लीनियंट. लीनियंट म्हणजे जो डील दे देता है हर चीज़ में, जो म्हणजे कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं रहती है उसके अंदर, उसको लीनियंट बोलते हैं. क्लास में तुम मस्ती करो, कुछ भी करो, कुछ नहीं बोलते हैं कुछ लोग, तो वो लीनियंट रहते हैं. और उसका अपोजिट होगा स्ट्रिक्ट. स्ट्रिक्ट का मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहना. ओके, जो कड़क रहता है उसको स्ट्रिक्ट बोलते हैं. नेक्स्ट इज फ्रेश. फ्रेश म्हणजे ताज़ा. उसका अपोजिट होगा स्टेल. स्टेल का मतलब बासा, कल का या पहले, थोड़े दिन पहले का, उसको स्टेल बोलते हैं. फ्रेश अपोजिट स्टेल. परमानेंट. परमानेंट म्हणजे हमेशा. दिस इज़ माय परमानेंट एड्रेस, है ना. भाड़े के घर में अपन रहे तो अपन बोलते हैं दिस इज़ माय टेम्पररी एड्रेस. तो परमानेंट का अपोजिट होता है टेम्पररी. फॉर्चुनेट. फॉर्चुनेट मीन्स वेरी लकी, बहुत नसीबवान. अनफॉर्चुनेट, बदनसीब, है ना. जिसको लक नहीं रहता अपन बोलते हैं बेचारा बदनसीब है, तो दैट इज अनफॉर्चुनेट. ओके. सो नाउ पोलाइट. पोलाइट म्हणजे बहुत ही, हम्बल और पोलाइट जो है ये सिनोनिम्स है. तो पोलाइट का अपोजिट होगा हॉटी. हॉटी म्हणजे बहुत ही अलग रफ लैंग्वेज में बात करना, ये वो. पोलाइट म्हणजे प्लीज़, थैंक यू वगैरह वर्ड्स हमेशा जो ऐड करता है अपने लैंग्वेज में, वो पोलाइट रहता है. बी पोलाइट इन योर वर्ड्स. अपन बोलते हैं बेटा बेटा से बात करता है जो, या ऐसा वगैरह, तो वो पोलाइट का अपोजिट होता है हॉटी. एंशियंट म्हणजे पौराणिक, पहले के ज़माने का. मॉडर्न म्हणजे अभी के ज़माने का. अर्बन म्हणजे शहरी. रूरल म्हणजे गांव का. अर्बन म्हणजे सिटी की एरिया, रूरल म्हणजे गांव का. ओके चिल्ड्रन, नाउ वी विल मूव टू सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स फ्रॉम योर ग्रामर बुक. ग्रामर बुक में लेसन नंबर आप निकालेंगे, मैं भी आपको पिक्चर भी पेश करती हूँ. सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, लेसन नंबर 35, पेज नंबर 121. सिनोनिम्स एंड अपोजिट्स. ओके. तो ये दोस्तों पेज नंबर 121 निकालिए और देखिए सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. ये आज अपन कवर कर लेते हैं. तो अपन पहले लेते हैं एंटोनिम्स का भाग, दैट इज पेज नंबर
पेज नंबर पेज नंबर 122। पहले अपन एंटोनिम्स की बात करेंगे, अगर टाइम परमिट किया तो फिर अपन लेंगे सिनोनिम्स। ओके, फर्स्ट वर्ड है अबव। अबव का मतलब होता है ऊपर, अबव अपोजिट बिलो। एब्सेंट अपोजिट प्रेजेंट, एब्सेंट का मतलब नहीं आया, अपोजिट प्रेजेंट। अराइव, अराइव म्हणजे आना, डिपार्ट म्हणजे जाना। अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम रेलवे स्टेशन पे लिखा हुआ रहता है, समझ में आया। अराइवल म्हणजे जो ट्रेन आने वाली है, डिपार्चर म्हणजे जो ट्रेन यहाँ से उस स्टेशन से जाने वाली है। अस्लीप, अवेक, अस्लीप म्हणजे सोना, अवेक म्हणजे जगना। ब्यूटीफुल बहुत सुंदर, अगली कुरूप। बिगिनिंग शुरुआत, अपोजिट एंड समाप्त। बिग अपोजिट स्मॉल। बोल्ड म्हणजे निडर। टिमिड म्हणजे शाय। ब्राइट अपोजिट डल। ब्रॉड चौड़ा, बहुत म्हणजे क्या बोलते हैं, चौड़ाई में बहुत ज़्यादा रहता है। नैरो, नैरो म्हणजे सुकड़ा, कुछ भी रास्ता भी रहो या मन भी रहो, ही इज़ ब्रॉड माइंडेड, ही इज़ नैरो माइंडेड बोलते हैं ना अपन। जिसकी सोच बहुत संकुचित रहती है दोस्तों, उसको नैरो माइंडेड बोलते हैं। जो बहुत ही दूरदृष्टि वाला रहता है और जो बहुत ही मन जिसका बड़ा रहता है, अपन उसको ब्रॉड माइंडेड बोलते हैं। बिजी म्हणजे जिसके पास वक्त नहीं है। आइडल म्हणजे जिसको कोई काम नहीं है, रिकामा। बाय अपोजिट सेल। चीप अपोजिट एक्सपेंसिव, चीप म्हणजे बहुत कम पैसों में आपको कोई भी चीज़ मिलती है, उसको चीप बोलते हैं। चीप का अपोजिट एक्सपेंसिव। क्लीन अपोजिट डर्टी। क्लेवर अपोजिट फुलिश, क्लेवर म्हणजे हुशार, फुलिश म्हणजे मूर्ख, स्टुपिड। कोल्ड अपोजिट हॉट। क्रुएल अपोजिट काइंड। डिफिकल्ट अपोजिट ईजी। ड्राई अपोजिट वेट। अर्ली अपोजिट लेट। फॉल्स अपोजिट ट्रू। फास्ट अपोजिट स्लो। फॉरगेट भूल जाना। रिमेंबर याद आना। फ्रेंड दोस्त। एनिमी दुश्मन। फ्रंट सामने का हिस्सा। बैक, बैकयार्ड बोलते हैं ना, फ्रंट हाउस, बैक हाउस। फ्रंट को कोर्टयार्ड भी बोलते हैं, आंगन को, और फ्रंट को आगे का सामने का भाग को फ्रंट भी बोलते हैं। गेन कुछ भी मिलना, मिलाना। लूज लॉस, कुछ खो जाना, या लॉस यानी नुकसान हो जाना। गिव देना, अपोजिट टेक। ग्लैड खुश होना। सैड दुखी होना। हार्ड बहुत ही कड़क। सॉफ्ट बहुत नरम। हेस्ट घाई करना। डिले आराम से म्हणजे बहुत देर करना, हेस्ट डिले। हैवी बहुत वजनदार, लाइट। ओके। हाइड छुपाना, शो बताना। हाय अपोजिट लो, हाय म्हणजे ऊंचा, लो म्हणजे नीचा। हिट अपोजिट मारना निशाने पे। मिस मिस करना। हॉट गरम, अपोजिट कोल्ड ठंडा। इंक्रीज अपोजिट डिक्रीज, इंक्रीज म्हणजे बढ़ाना, अपोजिट डिक्रीज। जूनियर अपोजिट सीनियर। लेंड अपोजिट बोरो। लॉन्ग अपोजिट शॉर्ट। लाउड अपोजिट सॉफ्ट। मास्टर अपोजिट सर्वेंट। नियर अपोजिट फार डिस्टेंट। न्यू अपोजिट ओल्ड। प्रेज अपोजिट ब्लेम। क्विक अपोजिट स्लो। क्वाइट अपोजिट नॉइसी, क्वाइट म्हणजे जो चुप रहता है, एकदम शांत। नॉइजी बहुत नॉइस करने वाला। रिमेंबर अपोजिट फॉरगेट। रिच अपोजिट पुअर, रिच का मतलब पैसा वाला, पुअर मतलब गरीब। राइट सही, रॉन्ग गलत। रफ अपोजिट, रफ म्हणजे कर्कश। स्मूथ बहुत ही स्मूथ का मतलब क्या होता है हिंदी में, स्मूथ म्हणजे बहुत ही सॉफ्ट नरम। ऐसे
कापूस के जैसा रहता है जो। शार्प बहुत ही नोकीला, ब्लंट जिसको नोक नहीं रहती है। शार्प का अपोजिट डल भी होता है दोस्तों। शार्प म्हणजे बुद्धि से जो शार्प रहता है उसका अपोजिट डल। शार्प यानी जो नोकीला रहता है उसका अपोजिट ब्लंट। स्टार्ट अपोजिट फिनिश। स्टार्ट शुरुआत करना, फिनिश ख़त्म करना। स्ट्रॉन्ग बहुत ही बलवान, वीक दुर्बल। सक्सेस यश मिलना, फेल्योर अपयश मिलना। सुपीरियर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, इन्फीरियर बहुत ही घटिया। टीच अपोजिट लर्न, टीच सिखाना, लर्न सीखना। थिक गाढ़ा, थिन पतला। टॉप ऊपर, बॉटम नीचे। ट्रू अपोजिट सही गलत, फॉल्स। वाइड चौड़ा, नैरो सुकड़ा। वाइज होशियार, फुलिश मूर्ख। यंग अपोजिट ओल्ड, यंग का मतलब छोटा, अपोजिट ओल्ड मतलब बूढ़ा। नेक्स्ट इज कम टू द सिनोनिम्स। एडमायर, एडमायर का अपोजिट होता है प्रेज। एडमायर का अपोजिट होता है प्रेज। आल्टर चेंज। अम्यूजिंग, अम्यूजिंग का मतलब होता है कुछ अपने को एंटरटेनमेंट मिलता है, तो उसका सिनोनिम है डिलाइटफुल। सिनोनिम म्हणजे सेम मीनिंग वाले वर्ड्स। दोस्तों आपको याद रखना है अपोजिट और सिनोनिम। सिनोनिम्स का मतलब होता है सेम मीनिंग वाले वर्ड। अनाउंस डिक्लेयर। एनुअल ईयरली, साल में एक बार। असेंबल इकट्ठा करना, गैदर। अटेम्प्ट बार बार कोशिश करना, ट्राई। ब्यूटीफुल सुंदर, लवली। बिगिन स्टार्ट। बिग लार्ज, बोल्ड ब्रेव, ब्राइट ब्रिलियंट, ब्रॉड वाइड। ब्रॉड वाइड। काम क्वाइट, काम म्हणजे शांत, क्वाइट। चूज चूज करना, पिक करना, सिलेक्ट। क्लेवर होशियार, इंटेलिजेंट। कॉमन साधारण, ऑर्डिनरी। कंप्लीट ख़त्म करना, फिनिश। करेक्ट, करेक्ट यानी सही, राइट। डिसीव, डिसीव म्हणजे चीट करना, चीट करना म्हणजे दगा देना। डिसीव चीट। एरर मिस्टेक, एरर यानी गलत कुछ कर देना, एरर हो गया, मेरी मिस्टेक हो गई। फूल मूर्ख, स्टूपिड। जेनरस काइंड। ग्लांस लुक, ग्लांस म्हणजे एक झलक दिखला जाना, उसको एक ग्लांस बोलते हैं। ऑनर रिस्पेक्ट। आयडल लेझी, आयडल म्हणजे रिकामा, लेझी। इलनेस डिसीज। जॉय प्लेजर, जॉय म्हणजे खुश होना, प्लेजर इट्स माय प्लेजर दैट यू हैव कम, मुझे खुशी हुई कि आप आए, ऐसे वगैरह। लिबर्टी छूट, फ्रीडम। मिराकुलस बहुत ही अद्भुत, वंडरफुल। परफेक्ट सही, कंप्लीट। प्रॉफिट मुनाफा, गेन। रैपिड क्विक, रैपिड का मतलब होता है जल्दी जल्दी, क्विक। रियल ट्रू, रियल का मतलब सच्चा, सही, ट्रू। स्पीक बोलना, टॉक। यूजुअल कॉमन, यूजुअल म्हणजे हमेशा के जैसे। कॉमन, कॉमन म्हणजे कॉमन और यूजुअल एक ही होते हैं। वेकेंट म्हणजे जो जगह खाली रहती है, एम्प्टी, वैकेंसी भी बोलते हैं। वेकेंट म्हणजे डब्बा बब्बा खाली रहना या कोई जगह खाली रहना, उसको वेकेंट बोलते हैं। तो वेकेंट का मतलब होता है एम्प्टी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपने जाना सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। अभी इसकी जो एक्सरसाइज है उस पर ध्यान दीजिए। एक्सरसाइज का भी है पेज नंबर 123, एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए, पेज नंबर 123 पे ध्यान दीजिए। एंटोनिम्स कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड बाय एडिंग अन, डिस, इन, इम, इर, ये ध्यान रखना है। काइंड अनकाइंड, एबल अनेबल, हैप्पी अनहैप्पी, फिट अनफिट, डिसअग्री डिसअग्री, अपीयर डिसअपियर, लाइक डिसलाइक, कंटिन्यू डिसकंटिन्यू, करेक्ट इनकरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कंप्लीट इनकम्प्लीट, जस्टिस इनजस्टिस।
possible, impossible, moral, immoral, regular, irregular, religious, irreligious. Synonyms word का wide का क्या आएगा? Wide का broad, large का big, usual, common, respect, respect का क्या आएगा? Obey, wonderful, miraculous, marvelous, success, सक्सेस का क्या आएगा सिनोनिम? सिनोनिम्स सक्सेस, सक्सीड भी बोल सकते हैं अपन, या फिर सक्सेस का मतलब होता है कि सक्सेस मिलना, सक्सीड ही होगा इसका मतलब, सक्सेस, सक्सीड। अचीवमेंट भी बोल सकते हैं सक्सेस को, अचीवमेंट। ओके, जनरस, ब्रॉड माइंडेड, जनरस का ब्रॉड माइंडेड। चीट, डिसीव, क्विक, रैपिड, प्रॉफिट, गेन। एंटोनिम्स अर्ली, लेट, काइंड, अनकाइंड, बिलो, अबव, एंड, स्टार्ट, अवेक, अस्लीप, डर्टी, क्लीन, अराइव, डिपार्ट, ईजी, अनईजी, डिफ़िकल्ट भी लिख सकते हैं। एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मतलब होता है चीप, सीनियर, जूनियर। एंटोनिम्स, अब एंटोनिम्स बाय एडिंग अन, डिस, इन, इम, आर, इर। लाइक, डिसलाइक, फिट, अनफिट, रेगुलर, इरेगुलर, हैप्पी, अनहैप्पी, पॉसिबल, इम्पॉसिबल, कंप्लीट, इनकम्प्लीट। ओके दोस्तों, so we will continue rest in the next video. Till then, please complete the exercise. Exercise 123 should be completed along with the textbook exercise. Have a good day, children. Bye bye.